Hi friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman back again with you on VR1 channel, and this channel will be telecast live on YouTube at the channel called Brigadier Guides You. Well, ladies and gentlemen, today it has been almost 1 year, एक साल हो गया है जब 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A took place, और उस वक्त ये एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था और एक बहुत बड़ा इवेंट था। आज 1 साल होने को आया है और उस समय हमको जितने प्रोमिसेस किए गए थे कि वैली में खुशहाली आएगी, मिलिटेंसी कम होगी, जो लोगों की एलिनेशन है कश्मीरियों की वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ज्यादा होगी। तो आज हम इसको एक मूल्यांकन करना चाहते हैं, इसका एक आकलन करना चाहते हैं। We want to review what has undergone in last 1 year and as to where do we stand today. To discuss this, I have a very prominent personality from Jammu, Mr. KB Jandiyal, who is a very, very senior retired civil services officer and a very prominent social activist, a very renowned scholar, and he writes in lots of newspapers and lots of other journals. और इनकी जो नॉलेज है J&K की रियल सिचुएशन के बारे में एक बहुत ही सटीक और बहुत ही एनालिटिकल है, and today we have the benefit of him sitting with us. So welcome Dr. Jandiyal with us. Thank you sir for us. Thank you Brigadier Sahab. Thank you Brigadier Sahab. I am honored. Sir, to begin with, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे 1 year of abrogation of 370 and 35A सर। सर इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे आपसे सवाल पूछूं, एक छोटा सा एक डाउट मेरे माइंड में आ रहा है। जब ये एब्रोगेट किया गया था तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल तरीके के साथ, एक बहुत ही टेक्निकल तरीके के साथ, एक लीगल तरीके के साथ इसको हैंडल किया गया है। तो अगर वो सारे तरीके सही हैं सर, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो हम वर्ड यूज करते हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, इट्स ए इनकरेक्ट वर्ड। ये होना चाहिए ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 370, क्योंकि 370 तो अभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आपके इसके बारे में क्या विचार है सर? You are absolutely right. This is basically a wrong word being used. Basically, it has been the demand of the BJP right from beginning to abrogate this provision. But actually, if you use that legal terminology, this 370 has been recast. Basically, the 370, as you rightly said, still exists, but with different provision. The controversial provision of the earlier 370 has been removed, and a very compatible text has been added. So 370 continues to be there, and abrogation is not the right word. But since it is now is a spoken word, cliches, which is being used everywhere, so we often write abrogation within quotes. So it is basically recast of Article 370 with a different provision. That's right, sir. Of course, those are a bit of semantics, and let the legal luminaries work on it. मगर हम आप बात से आज ये पूछना चाहते हैं कि सर 1 साल हो गया और ये दोनों डीऑपरेशनलाइजेशन कर दिया गया J&K से, तो उससे कोई फर्क पड़ा है क्या? लोगों की जो कंडीशन है उसमें कोई सुधार हुआ है सर? आप क्या सोचते हैं? देखिए ब्रिगेडियर साहब, आप यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड a very veteran person from defense forces. 1 year is too brief a period to assess anything. 70 साल की जो मक क्रिएट हुई है उसको आप 12 महीने में खत्म कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल था और ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ए लॉन्ग रोड अहेड फॉर अस। यू नो, ये 370 हम इसे नेशन इसे क्यों रिमूव करना चाहता था? अगर आप 370 देखें और अगर 370 की प्रोविजन जो हमने रिमूव की और नया लाया, 370 provision was not as atrocious as we always talk about. But the problem was that Kashmiri leadership and the successive governments and the leaders have used this provision to convey a message to the people of Kashmir and also in an attempt to people of Jammu and Kashmir that we are separate from India.
We are not a state as good as Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, UP. So we are separate. We belong to a separate QOM. So they have a different nation. So this wrong interpretation of Article 370 created a problem. And with this, the entire thing has added up. And I think, and one thing is very clear. I don't know whether there is a time to think to go back to the original 370. And it was always used to wrongly express this word. They say even the chief minister on the floor of the assembly, Umar Abdullah, had once said the accession is conditional. There's nothing like conditional accession. The accession was absolute. The instrument of accession is a uniform document which has to be signed by the ruler of the state, and it is his discretion to join which dominion he wanted to. So linking it with the first part of the Article 370, which restricted the legislative powers of the parliament in respect of the subjects in the union and concurrent list. Right, sir. You are absolutely right about that, sir. But then, sir, एक चीज और है कि like when this happened last year, very lot of noise was made that because of this the militancy will go away and lot of prosperity will come. Now, like say last about 7-8 months, we are seeing the militancy is on the rise, sir. So, what are your views about that? Brigadier Sahib, no one better than you can talk on this aspect. The militancy is not linked with 370 in any case, and it will not go with the so-called abrogation of Article 370. The main player is the Pakistan. My assessment is as long as Pakistan exists and Pakistan continues to make Kashmir as their domestic politics agenda, Kashmir will continue to suffer. The only level will go up and down. It is a big challenge to the Indian establishment and all of us, including the defense forces, to bring back, to change the mindset of the people of Kashmir. Because today, they provide a fertile land to Pakistan to execute their all machinations. So the effort should be, rather than to utilize the abrogation of 370, to build bridges, to bring them back in our fold, in the mainstream. That's right, sir. You're absolutely right that we should try and build bridges with the local populace. But can you tell us, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं, ये जो पाकिस्तानी पैसा आता है हवाला के रूट से, by trans-border trade, or even for that matter, ये जो अपनी travel agencies हैं, यहाँ even ये security officials को compromise कर लिया जाता है with the help of money. ये system क्या है सर? कैसे वो बोली लगती है stone pelters की या फिर funeral processions की? How do they operate in the valleys? Can you tell us some examples about this? Actually, देखिए, you know, Kashmir में, if you call all Kashmiris are with Pakistan, it is a wrong statement. And to say that all are Indian, this is also a wrong statement. There is a fringe element and very impressionable age people who have no other work to do. That is one part. Second is that people who have been radicalized and radicalized on the religious basis, giving them the hope of a Jannat and hura, that all that परियां जो हैं वहाँ बैठी इंतजार के लिए, तो वो religious जो उनका end है, achievement है, salvation जो है, वो section है. तीसरी section है जो harbor करते हैं, जो आपने हवाला कहा, जो पैसा आता है, they are agent, they take money from, not only from Pakistan, even from Indian agencies. They even make, some of them are even double agent. So there are different type of people. And then the fourth class is who don't want to be bad to anyone. Not to those who are with Pakistan, not to those who are with India. So they are a different platform there. And people, and in a particular situation, they exploit the sentiments and start even some those who are tempted by money. They give 500 rupee for a day. जाओ वहाँ पत्थर मार के आ जाओ.
So, but there are other people, those who don't take money, but they go for the jihad to hit them. So this is a combination of so many section of society. And True, sir. True. Very well said, sir. Let's ask you, sir. ये तो सैयद अली शाह जिलानी ने इस वक्त रिजाइन किया है AHPC से. How do you see this development? इसके क्या ramifications हैं, sir? I think this is quite a major development on the separatist front. अगर आप देखें कि सैयद अली शाह गिलानी ने जो अपना resignation दिया, he has expressed disappointment. He has said कि जो 5 अगस्त को हुआ उसके बारे में मैंने कुछ सवालात पूछे थे, मुझे कोई जवाब नहीं मिला. So he said he could not get a response from the cadre, not from his leaders. So he said कि वो ये जद्दोजहद उसके लिए जारी रखना ज्यादा नहीं अच्छा नहीं है. पर मेरा ख्याल है कि it is a reflection of overall situation in the valley. अगर आप देखें एक साल में अगर हमारा पॉलिटिकल वैक्यूम था मेन स्ट्रीम पार्टीज का, क्योंकि काफी लोग जो तकरीबन ऑल लीडरशिप कश्मीर लीडरशिप वाज बिहाइंड द बार और डिटेन्ड whether in their houses or in the guest houses. Even separatists जो थे उनका भी कोई खास एक्टिविटी नहीं थी. Not even the statements the usual statements of criticizing India and speaking about the separation. So एक जनरल माहौल था जिसमें उनको शायद रियलाइजेशन हो रही है कि ये गवर्नमेंट के होते हुए हमें कुछ नहीं मिलना. They are hell bent on removing all those things which promote separatism. So उस सूरत में एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है. और देखें इसके बाद मीरवाइज की भी स्टेटमेंट कोई नहीं आई. वो भी बड़ा वो आराम से बैठा है, क्वाइट है, सो एक्टिव नहीं है. सर इवन आपके सारे जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, who've been chief ministers etc earlier, आज वहां पे कोई वॉइस नहीं है जो उनको छोड़ने के लिए बोल रही है. कोई आंदोलन नहीं है, कोई फोरम नहीं है जो बोल रहा है कि इनको आपने PSA के अंदर क्यों नजरबंद करके रखा हुआ है. तो what does it reflect about the sentiments of Kashmiris towards these so-called leaders? ब्रिगेडियर साहब, इसमें भी दो पहलू हैं. There are two sections of the society. एक सेक्शन तो ये कहती थी ये अच्छे हुए इनको जेल में भेजा, ठीक, क्योंकि they were fed up from these mainstream political parties. ये भी मौका देखकर सेपरेटिस्टों की भाषा बोलते थे. जब वक्त आता था तो वो हिंदुस्तान की भाषा बोलते थे, ठीक है. they were playing dual game. तो इसलिए लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा. तो दूसरी सेक्शन थी तो जो उनको मानते हैं, उनके कार्डर जो हैं, वो इसलिए चुप हो गए कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था. प्रोटेस्ट जो है, अगर आपने देखा होगा, इट इज ऑफन सेड कि इस डेवलपमेंट के बाद जो उनकी ये शाह रग होनी चाहिए थी 370, इसके हटाने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ. मतलब प्रोटेस्ट हुए, ये भी नहीं कहना कि प्रोटेस्ट नहीं हुए, कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जो कोई खबर बनती जिसपे छोटे मोटे कहीं गलियों में कहीं पत्थर मारे होंगे, वो ये है वो नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था. प्रोटेस्ट दो चीजों से होता है मेरे हिसाब से. एक तो प्रोटेस्ट होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंजीनियर्ड. जैसे पत्थर मारने वाली बात थी, वो इंजीनियर्ड भी थे, स्पॉन्टेनियस भी थे. यहां पर इंजीनियर करने के लिए पॉलिटिशियन जो थे सारे, जिनको ये सूट करता था प्रोटेस्ट, वो सब अंदर थे. सो दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो लाजमी तौर पे वहां पर जो इसका रिएक्शन था वो बड़ा ही म्यूट था. इट वॉज वेरी लो की. तो इस लिहाज से पॉलिटिशियन का जो हुआ अंदर जाना, ये स्ट्रेटेजी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज गुड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू हैंडल. एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट ये नहीं है कि 370 वापस हो जाएगा. इसमें सिचुएशन में एंड रिजल्ट था कि वहां खून ना बहे, कश्मीर में खून ना बहे, लोग ना मरे. ये पार्ट जो था ये गवर्नमेंट ने अचीव किया. So that's true, sir. की बात next government का जो next objective था to probably get the Kashmiri Pandits back to their homelands. तो ये क्या हो सकता है, or is it still a utopia
and what kind of thing you आपके बारे में आपके क्या विचार है इस बारे में, इसके बारे में क्या ये सब पॉलिटिक्स है, ये कश्मीरी पंडित भी जानते हैं और जो कहते हैं वो भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर्ड जज की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कैसे? इट टुक हिम 30 years टू थिंक ऑफ इट। वो गए 89 से 90 में गए और आज 2020 में आया जब वो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत कितनी दफा थी, who stopped them from setting up a committee to analyze what were the reasons? So ये पॉलिटिक्स है। जैसे वो कहते हैं कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। ना तो कश्मीरी पंडित वहां जाना चाहते हैं, ना वो कश्मीरी पंडितों को बसाना चाहते हैं। अगर वो बसाना चाहते हैं तो कहते हैं हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे बसाना है। अगर मुफ्ती गवर्नमेंट के महबूबा मुफ्ती की जब हुकूमत थी, जब बीजेपी के साथ, तो दे ट्राइड एन आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग सम सेपरेट कॉलोनीज फॉर कश्मीरी पंडित। दे अपोज्ड इट, विल नॉट अलाउ यू। अगर आपने बसना है तो हमारे साथ बसो। So they remain under their control. So Kashmiri Pandits are not willing to go there. So that's true, sir. But now let's talk about the Jammu region, sir. जम्मू की भी शुरू से ही बहुत सारी ग्रीवेंसेस रही हैं, और जब ये जम्मू में बीजेपी गवर्नमेंट की 25 सीट्स आई, तब ये बहुत बढ़िया आशा बनी कि अभी तो जम्मू के लिए चेंज होगा। एंड स्पेशली जब बीजेपी ने अपना एक प्रॉमिस पूरा किया कि 370 हटा देंगे, तो जम्मू में एक बड़ी खुशी की लहर थी। हालांकि जम्मू में भी प्रिवेंटिव डिटेंशंस थी, जम्मू में भी कर्फ्यू था, बट दैट वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन। पीपल वर रिजॉइसिंग ऑफ 370 एंड नॉट मोर्निंग लाइक पीपल इन कश्मीर वर डूइंग, सर। पर उसके बाद जो एक साल के अंदर जम्मू के लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी, क्या वो पूरी हो गई, सर? और ये जम्मू के लोगों ने कुछ अचीव किया इससे, और वी आर स्टिल wherever we were, sir? देखिए, इसमें ब्रिगेडियर साहब यू दो जम्मू की ग्रीवेंस मेजर क्या थी? सबसे बड़ी ग्रीवेंस थी वो डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। एक मेजर प्लैंक था जिसपे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। और ये भी एक चीज सोचनी चाहिए कि अनलाइक कश्मीर, जम्मू इज नॉट मोनोलिथ। जम्मू एक रिलीजन, एक फेथ का रीजन नहीं है। यहाँ पर इट्स अ मिनिएचर इंडिया बेसिकली। कश्मीर में 99.9% मुस्लिम है, वन फेथ। यहाँ पर हमारी जो सोच है, हमारी सोच रिलीजन की वाइज है, उनकी सोच हिंदू और मुसलमान के बीच में है। हमारी सोच जम्मू की वो नहीं है। तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी डिस्क्रिमिनेशन। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया अभी तक स्टैट्यूटरी द कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे जम्मू की ये डिस्क्रिमिनेशन की जो मेजर ग्रीवेंस थी उसको एड्रेस किया जाए। अब उन्होंने एक तरीका अपनाया कि पॉलिटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन थी कि एक लॉपसाइडेड था कि जम्मू के सीटें कम थी, उन्होंने जो नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया उसमें उन्होंने 7 सीटें और दे दी, विद दिस होप कि जम्मू में वो मिल जाएंगी और जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। जैसे आपने कहा 25 मेंबर आपके बीजेपी के आए, तो 3 साल इन्होंने हुकूमत की, तो उस हुकूमत में जम्मू का कुछ भला हुआ? या जम्मू की कोई भला, तो देखिए भला तो होता रहता है, वैसे गवर्नमेंट जब काम करती है तो उसका फायदा हर रीजन को होता है, लेकिन कोई ऐसा मेजर चीज नहीं की जिससे जम्मू के इश्यूज को एड्रेस किया। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात बताता हूँ। आपने जो एक पेपर डॉक्यूमेंट बनाया जो जिसे कहा जा सकता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विद पीडीपी, तो आपने एम जो था वो कश्मीर को दे दिया, बीजेपी ने दे दिया, राम माधव जी ने दे दिया। जब जम्मू ने, हम लोगों ने एजिटेशन की कि कश्मीर में तो सौरा इंस्टीट्यूट तो आ गई है पीजीआई के लेवल का, तो आपने वहां क्यों दिया? तो बीजेपी ने हमें कोई मतलब वो सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। दे वर इंडिफरेंट। जबकि कुछ लोगों ने पढ़ के 2 महीने के बाद वो उन्होंने माना कि ये इनको देने के बिना कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन उसको बात हुए भी 4 साल हो गए, वहां काम नहीं शुरू हो पाया। ये नहीं, ये मेरा कहने का मतलब है ये चीज है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जम्मू को कुछ बहुत ज्यादा मिल सकता था। अब नौकरियों की बात है, पिछले 1 साल से नौकरियां तो है नहीं। अभी जो इन्होंने 10,000
डेली वेजर की नौकरी का ऐलान किया, वो प्रोसेस अभी 25 अगस्त तक उसकी एप्लीकेशन आनी है और वो दिसंबर तक प्रोसेस होगा, तो अभी 1 साल तो नौकरी नहीं मिली। और वो डेली वेजर जो है वो हमारी लेवल जो है जिसे हम सही मैंने में कहते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। आपके गस्टेड जो जॉब है वो 1 साल से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पीएससी को डिसबैंड कर दिया। अब पीएससी रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, अब ये प्रोसेस शुरू होगा, बट उसको रिकॉन्स्टिट्यूट हुए भी महीना 1.5 महीना हुआ है, द थिंग्स हैव नॉट मूव्ड फास्टर। तो ये चीजें जो हैं अभी हैं। अब डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात ये ठीक है, एम आपने एम्स दे दिया, बट आईआईएम दे दिया, आईआईटी दे दिया, वहाँ क्लासेस भी शुरू हो गई, या कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल गए थैंक्स टू ये उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के एफर्ट से ये चीजें कहीं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो इशू है, जो मेजर इशू होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन एट ए नेशनल लेवल, वो अभी भी परसिस्ट करती है। सर, इसके अलावा एक और मेजर इशू जो है बड़ा जम्मू में बोला जाता है कि देयर इज अ रिलीजियस परसिक्यूशन, देयर इज अ अटेम्प्ट, डेलिबरेट अटेम्प्ट फॉर अ डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू। जैसे रायसीना केस हुआ, फिर उसके बाद वो रोशनी एक्ट था सर, और उसके अलावा और भी जो उन्होंने जम्मू का इर्द गिर्द जो घेराबंदी करने की कोशिश की, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, ये you know, when we say we are a secular country and when we say हमने 370 क्यों उड़ाना था, हमें 370 जिसने नहीं उड़ाना था कि हमने मिलिटेंसी खत्म हो जाती है। 370 इसलिए हमने उड़ाना था कि हमें इंडिया के साथ इंटेग्रेशन हो जाए, फुल इंटेग्रेशन, इमोशनल इंटेग्रेशन हो गई। मैं तो कहता हूँ हम पहले भी इंटेग्रेटेड थे, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, बट इमोशनल इंटेग्रेशन हो गई। अब आपको पंजाब से कोई बंदा यहाँ पर आकर रहना चाहे, आपको रोक नहीं सकते, एक मुल्क है। उसी तरह डोडा से, पुंछ से, कश्मीर से कोई मुस्लिम फैमिली जम्मू में बसना चाहती है तो आप रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं तशद्दुद से, उनको रोकने के लिए अगर आपने बंदूक उठानी है मिलिटेंट की तरह, रुक जाएंगे। नहीं, बट ये बोला जाता है सर कि जो लोग बाहर से मुस्लिम फैमिली जम्मू आती थी, उनको फंडिंग करी जाती थी बाय सम स्पेसिफिक ग्रुप्स कि आप अगर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदो तो 50,000 हम आपको रिफंड कर देंगे इमीडिएटली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये चीजें होती रही और होती रहेंगी। आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, ये इनको चेक करने की जरूरत होती है, टू रेज द वॉइस। और रोहिंग्याज यहाँ पर बैठे हुए हैं 7 साल से, जम्मू ने इतनी आवाज उठाई, वो चले गए क्या? आपने उनको जम्मू से उठा के कहीं ले गए? जब आपका यहाँ पर ये आपका अटैक हो गया था सिंजुआ में, तो एलिगेशन लगता था कि वहां पर साथ में हैबिटेशंस है, तो क्या आपने हैबिटेशन उठा दी? वहां बीजेपी का हुकूमत की नहीं है। ये डिफिकल्ट होता है कि बिकॉज इट हैज ए रेमिफिकेशन। आप एक जगह टच करते हो हाथ, इसका रेमिफिकेशन बड़ी दूर तक जाती हैं, और एक सेकुलर कंट्री में ये पॉसिबल होता है। जो आप कहते हैं फंडिंग करके ये आप कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि जम्मू इज ए पीसफुल एरिया। जम्मू बिलीव्स इन हार्मनी, जम्मू बिलीव्स इन कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अनलाइक कश्मीर। तो इवन कश्मीरी जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे वो लोग हैं, वो यहाँ पर ज्यादा देर रहना चाहते हैं, बिकॉज दे फील हैप्पी कि यहाँ पर असली आजादी यहाँ पर है। कश्मीर में आजादी नहीं है उनको, मुस्लिम होने के बावजूद भी आइडियोलॉजिकली वो उधर ही हैं। लेकिन इस बात पे कि पीसफुल जो एरिया है वो जम्मू लगता है। तो ये चीजें होंगी, इसका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन नहीं सकता, कोई कानून नहीं बन सकता जिससे आप रोक सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी ज्यादा बोली जा रही है कि जब से बीजेपी का जम्मू वालों ने काफी सीट्स ली, उनको मैंडेट दी, बट बीजेपी से कोई क्रेडिबल लीडरशिप उभर के नहीं आई। तो ये क्या सही बात है या गलत? आई मीन जस्ट अ थॉट सर। नहीं, यू आर राइट, ये फीलिंग सबको है। व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट, उन्होंने जो लोगों को नॉर्मल एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। उनके बिहेवियर से, उनके काम करने से, उनके मिलने से, कोई भी चीजों पे पीपल वर नॉट हैप्पी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ब्रिगेडियर साहब, ये वोट इनको नहीं दिया। जम्मू ने वोट दिया मोदी जी को,
और ये इनके अभी नेक्स्ट इलेक्शन में भी मोदी को ही वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हम भेजते हैं, अब आप खुद सोचे पीडीपी में ये इक्वल पार्टनर थे और मुफ्ती सईद ने हल्फ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं पाकिस्तान और मिल्टन को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ में हमारे डिप्टी सीएम बैठे थे, क्यों चुप रहे? जम्मू की बात थी, खड़े होते कहते ये इनका व्यू है, हमारा नहीं है, कह सकते थे ना, पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सो जो उन्होंने बाहर किया वो अंदर भी यही हाल था। तो जो हमारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो बात है वो हमारी स्ट्रांग हो, हम में से जो रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर वो अच्छी सोच की हो, उनको पढ़ने की आदत हो, अंडरस्टैंडिंग की आदत हो, कानून का पता हो। ये वही बात हो गई जो आपको मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूं कि जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी और उसके बाद आपके पास ये जो 35A की बात है, 35A की बात जो है उसमें कानून में कहीं नहीं लिखा कि जो औरतें नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी करती हैं उनका राइट खत्म होता है। हाई कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। अपील करनी, इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, SLP मुजफ्फर हुसैन बेग वकील था, उन्होंने कहा कि अपील हार जाएंगे, हमारे पास कानून ही कोई नहीं बनाया, तो कानून बनाते हैं। तो एक कानून लाया जिसे डिप्राइव करना है विमेन को, और वो कांग्रेस के जो लोग थे जम्मू से, पंडित मंगल राम जैसे लोग भी थे, उन्होंने कैबिनेट में अप्रूव कर दिया। ना कि कैबिनेट में अप्रूव कर दिया, असेंबली में भी पास हो गया। जब काउंसिल में आया तो लोगों ने पकड़ लिया गया, मुसीबत क्या कर रहे हो, तो भाई काउंसिल में जाके इसे रोक किया, तो ये बन नहीं पाया कानून। तो हमें इस किस्म की जो बहुत सारी ग्रीवेंसेस जम्मू वालों की हैं, अभी वी गॉट ओनली 5 मिनट बाद बचे हैं, तो आप थोड़ा जरा हमें बताइए जम्मू वालों की क्या क्या ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट द प्रेजेंट रेजिम। देखिए ग्रीवेंसेस बहुत हो सकती हैं, मैंने वैसे वही कहा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू चाहता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिक्रूटमेंट वो चाहता है, वो कहता है इक्वल शेयर होना चाहिए, हमारे डेवलपमेंट में हमारा पूरा शेयर होना चाहिए। और जम्मू में जब आप बात करेंगे तो जम्मू जो सब रीजन भी हैं, आपका उधमपुर है, कठुआ है, जो डोडा है, किश्तवाड़ है, पुंछ राजौरी है, तो ये सब रीजन को हमारी जितनी भी डेवलपमेंट का एफर्ट होता है, जब प्रोजेक्ट है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि हर एक आदमी समझे कि मेरी डेवलपमेंट भी हो रही है। एंड सेकेंडली करप्शन दूर होनी चाहिए। जो करप्शन बहुत है, ये करप्शन मोदी साहब के कहने का बात है, लेवल पे करप्शन खत्म नहीं होती है। आज भी बिना पैसे दिए काम नहीं होते हैं, ये चीजें हैं। बड़े लेवल पे जो स्कैम होते हैं उसमें CBI रेड कर लेता है, पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो आम लेवल पे करप्शन हो रही है वो आज भी है। तो कुछ कन्वीनियंस होनी चाहिए। जैसे छोटी सी बात थी आपकी, ये जम्मू की बात नहीं है, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए, आप जो स्टेट सब्जेक्ट वाले थे उनको डोमिसाइल का कहना था डीम टू बी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप आराम से करिए, आपके 1 करोड़ स्टेट सब्जेक्ट बने होंगे, तो अब हर एक को ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। अब आपकी लैंड की जो प्रॉब्लम है, लैंड एलिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने डोमिसाइल का अभी कानून लैंड के बारे में सोचा ही नहीं है, अनलाइक जो हिमाचल में था। तो अभी ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिसमें होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू वालों को ये फीलिंग होनी चाहिए कि दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अदरवाइज ये फोकस कश्मीर का रहता है, तो कश्मीर इज ए प्रॉब्लम। सो नेचुरली हर चीज कश्मीर की बात होती है, तो जम्मू को भी वो साइकोलॉजिकल एक फीलिंग देनी चाहिए कि वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जो सेंटर है वो जम्मू को भी उसी तरह देखता है जैसे वो। Having said that, sir, like you brought it out very well. आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त जम्मू का जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए चैलेंजेस तो वही है कि आप एक ऐसा देखें, आप एक्सट्रीम पोजीशन जम्मू में नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा, अनलाइक इन कश्मीर, हमारा जो है मिनिएचर इंडिया है, एक्सट्रीम पोजीशन ले सकते। आपको जो भी अप्रोच करनी है, जम्मू के एक कलेक्टिव जो जम्मू का सेंटिमेंट्स है उसके बारे में सोचना है। जैसे मैंने आपको कहा, चैलेंजेस हैं कि आपको जो भी यहाँ का लीडर उभरे
whosoever becomes a real leader like प्रेमनाथ डोगरा, उनकी तरह का कोई लीडर यहाँ बने, तो वो हर रीजन की बात सोचे, हर कम्युनिटी की बात सोचे, वो महदूद ना रह जाए एक जाति के साथ, एक सेक्ट के साथ, एक रीजन के साथ, एक एरिया के साथ। हमारे में बड़ी प्रॉब्लम है, कभी हम राजपूत होते हैं, कभी हम पंडित होते हैं, कभी हम महाजन होते हैं, कभी हम खत्री हो जाते हैं, कभी हम शूद्र हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, कभी हम मुसलमान। तो ये हमें सब चीजों से उठ के, हमारी जो पॉलिटिक्स जम्मू की है वो हमेशा जात पात में ही रही है। अगर आपको पता है कि हर एक आदमी जब बनता है तो वो पहले से अपनी जात की बात करता है। तो हमें इन चीजों से उठ के पूरे रीजन को देखना चाहिए, और रीजन में जो चीजें हो सकती हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सकती है, उसका फायदा उठाकर हमें एक कश्मीर को हमारे कश्मीर के साथ रहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें यूटी दे सकती थी, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में शायद नहीं है कि एक यूटी बना दिया जाए जो एक रिलीजन के बेसिस पे हो। वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में फिट नहीं बैठता है। तो वो तो हमें करना है। तो हमारे साथ एक अच्छी शांति रहे, सबको मिलकर चले हम लोग। और जम्मू का भी एक ट्रेड की बात है, जम्मू का ट्रेड बड़ा अफेक्टेड हो जाता है। जैसे 4G की बात है, कश्मीर में तो 4G की प्रॉब्लम हो सकती है, मिलते ही आपने जम्मू को भी बंद करके रखा है। ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है वो बड़ी परेशान है। हम ही देखें, हमें कुछ करना होता है तो 2G में हमें 10 मिनट लग जाते हैं खोलने में। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं बट हैं इम्पोर्टेंट। तो ये Yes, sir, Mr. Danyal, we're really grateful that you came on a show, and आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और रियलिस्टिक ग्राउंड सिचुएशन बताई। तो फाइनल लास्ट 1 मिनट सर, आप जम्मू वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जम्मू का यही संदेश है कि आप मिल के बैठिए, अपने आप को डिवाइड ना होने दीजिए। और जब हम देश की बात सोचते हैं, हमारा हमेशा कैरेक्टर यही रहा है, वी आर नेशनलिस्ट पीपल, और ये हमें हमेशा बफर रहा है। इतने यहाँ पर अटैक हुए, मिलिटेंट अटैक हुए, लेकिन हमारी हार्मनी नहीं खराब हुई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमें अपने ये सबको मिलके चलना है और सबके साथ रहना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात है, और जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका साथ देकर हमें डेवलपमेंट की तरफ पेशरफ्त होना है। Thank you very much, sir. Thank you for having you on the show. Really grateful. Thank you very much. And with that, I think we'll come to the end of this. And well, viewers, I would just like to tell you that what we concluded today is that last 1 year of application of 370, there has been some changes, albeit slow. But इसके अलावा militancy has also been controlled, and government has taken some credible steps to check all the nuances which were there before this. So with that view, I thank Mr. Danyal for coming over, and thank you very much, viewers. Thanks a lot. Jai Hind and Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.